Hello everyone. In this video tutorial, we are going to start our CSS journey. In web development, CSS is used to make website attractive and more presentable. Today, we are going to learn what is CSS, how you can use CSS in HTML and different ways of using CSS. Now, before we start learning CSS, I would like to show you how CSS make web pages presentable. So here you can see we have designed one website and it is not looking presentable, and neither no one can understand the layout. But the moment when we use CSS, see, this is how it looks. Now, one can understand the layout and CSS will make things attractive and presentable. This is the power of CSS. And now, let's start with what exactly CSS is. So first of all, CSS actually stands for Cascading Style Sheet. HTML stands for Hypertext Markup Language. CSS stands for Cascading Style Sheet. CSS is used to give styles to HTML elements. CSS is used to control the style of the web document in a simple and easy way. CSS describes how the HTML elements have to be displayed on the browser. And when CSS is applied externally, the same styles can be applied to multiple elements and pages. It will save work, time and effort. So guys, with the help of this image, you can see that we are going to use HTML in order to design the skeleton, means how your web pages will look. But we are going to use CSS in order to make web pages more presentable and attractive. So HTML defines the skeleton of your web pages and CSS is used to make your web pages more attractive and more presentable. And how you can do that? By applying styles to HTML elements. And CSS is used to give styles to HTML elements. Now, what is the purpose of CSS? Why we should learn CSS? So the purpose of CSS is quite simple. It is used to make web pages presentable. Let's have a look on to this example. Here you can see that a web page. Okay, here we have designed one web page, and in this web page, we are not using any kind of a CSS or we are not using any kind of a styles. But the moment when you apply CSS to this web page, see, this is how it will look. Same web page when styles are applied. So guys, you can see that CSS is used to make your web pages attractive and presentable. Let me show you this example once again. This is how it will look without CSS, and the moment when you are going to apply style to it, this is how your web page will look. Now let's talk about applications of CSS. CSS is used to create stunning web pages and website. It will save your lot of time because in CSS what we can do, we can reuse the style. अब इस पॉइंट को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. सपोज कि आप लोग एक वेब पेज बना रहे हो और उस वेब पेज में यू आर गोइंग टू यूज पैराग्राफ टैग. अब उस पैराग्राफ टैग को आपको कलर देना है ब्लू. जो भी टेक्स्ट आप पैराग्राफ के अंदर लिखोगे आपको उसको करना है सेंटर अलाइन और आपको उसका साइज करना है लेट्स से 30 पिक्सल. अब सपोज करो कि एक वेब पेज में आपने 10 to 15 पैराग्राफ टैग्स यूज किए. इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज सीएसएस, आपको ये कोड बार बार लिखना पड़ेगा. बट if you are aware of CSS, it will save your time by reusing the style. That means in CSS, we are going to write style for paragraph tag only once and we can reuse it as many times as you want. And the best part of CSS is it is easy to maintain. So HTML is like the walls of a house. It provides the structure for your website. CSS is like the paint on a house. It dictates the style for your website. So these are the applications of your CSS.
Now let's discuss about that how we can use or apply CSS to our HTML element. For that, you need to understand this syntax very carefully. If you want to make your web pages attractive and more presentable, then definitely we have to use CSS. और यहाँ पर ये जो सिंटेक्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस सिंटेक्स को आप बहुत केयरफुली समझो. So basically in CSS we are going to use some properties and we are going to use some values. In properties को हम कहते हैं CSS property और in values को हम बोलते हैं CSS values. Let's take this example. Okay, here we are applying a style to the paragraph tag. And what kind of a style we are going to apply here? We are going to change the color as blue. Font size हमने यहाँ पे दे दिया 50 पिक्सल. और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है, दिस इज माई पैराग्राफ. जैसे ही आप ये स्टाइल इस वाले टेक्स्ट पे अप्लाई करोगे, इसका कलर हो जाएगा ब्लू और इसका फॉन्ट साइज हो जाएगा 50 पिक्सल. ईच डिक्लेरेशन हैज CSS प्रॉपर्टीज एंड द वैल्यू सेपरेटेड बाय द सेमीकोलन. यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि एक पैराग्राफ टैग में आप मल्टीपल स्टाइल्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो. ओके, आपको बस ध्यान क्या देना है कि आपको यहाँ पर यूज करना होगा सेमी कॉलन का. तो ये होगी पहली प्रॉपर्टी और वैल्यू. यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड कलर टू दिस टेक्स्ट एज अ ब्लू. इसके बाद हमने दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या स्पेसिफाई की कि दैट वी आर गोइंग टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ दिस पैराग्राफ एज 50 पिक्सल. So each declaration has CSS properties and the value separated by the semicolon. In the first declaration, color is the property and blue is the value. In the second declaration, font size is the property and 50 pixel is the value. Okay, so guys, always remember, सबसे पहले आपकी property आएगी, सिंगल कॉलम के बाद आएगी उसकी वैल्यू. और अगर आपको पैराग्राफ टैग को लेट से मल्टीपल स्टाइल्स प्रोवाइड करवाने हैं, तो यू आर गोइंग टू सेपरेट देम बाय यूजिंग सेमीकोलन. ये जो सिंटेक्स है, we are also going to understand practically today. As of now, you need to understand or you need to have a look onto the syntax very carefully. Okay, so property value. Each declaration has CSS properties and values. Always remember this point. Now, just like HTML, in CSS we can also use comments. Suppose आप लोग एक वेबसाइट बना रहे हो और आप लोगों ने उस वेबसाइट के लिए एक CSS और let's say you are going to use a style tag. अब you are the developer of a website, आप उस वेबसाइट को बना रहे हो. In between you have to left the organization, okay, and you need to hand over the code to other developer. Now how that developer will going to understand कि ये स्टाइल हम लोगों ने या ये स्टाइल एग्जैक्टली में हमारे वेब पेज पे क्या करेगा. सो हियर प्लेस कमेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. सो गाइस, जस्ट लाइक HTML, in CSS we can also define comments. And the best part of comments is it will not be displayed in the browser, but they help to understand the code better. सपोज करो कि आपने पैराग्राफ टैग के लिए कुछ स्टाइल लिखा कि कलर रेड रहेगा, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल रहेगा और ये कोड आपको किसी दूसरे डेवलपर को देना है. नाउ दैट डेवलपर कैन रीड दोस कमेंट्स एंड कैन अंडरस्टैंड कि ओके, यहाँ पर आप लोगों ने स्टाइल लिखा है पैराग्राफ टैग के लिए, इसका कलर रहेगा रेड और इसका फॉन्ट साइज रहेगा 50 पिक्सल. सो कमेंट्स हेल्प्स अदर टू अंडरस्टैंड द कोड बेटर. Comments cannot be added in the inline style of CSS, but they can be added in internal CSS and external CSS. अब CSS के भी बहुत सारे टाइप होते हैं. We are going to discuss about 3 types: inline, internal and external. Inline styles में आप comments का यूज नहीं कर सकते. Okay, अगर आपको inline style में comments का यूज करना है, तो you can use HTML comments. तो CSS के कमेंट्स हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? इंटरनल CSS में एंड एक्सटर्नल CSS में. अभी इंटरनल CSS क्या होती है, एक्सटर्नल CSS क्या होता है, दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ व्हाइल. सो इंटरनल CSS की बात करें, सो कमेंट्स हैव टू बी एडेड इनसाइड द स्टाइल टैग. CSS comments start with this symbol. Okay, here you are going to use / and asterisk sign, and it ends with the asterisk sign and /.
Okay, so guys, remember, whenever you are going to use CSS comments, this is how you are going to use CSS comments. Forward slash asterisk sign, and you are going to end your comment with asterisk sign and then forward slash. Let me show you a quick example of CSS comment. Let's say, first of all, here we are going to use style tag. अब यहाँ पर हमने पैराग्राफ के लिए एक स्टाइल लिखा है कि इसका टेक्स्ट कलर रेड रहेगा और टेक्स्ट अलाइनमेंट हम क्या कर रहे हैं, सेंटर। तो यहाँ पर ये जो आपको स्लैश और एस्ट्रिक साइन के बीच में नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज सीएसएस कमेंट। अब आप ये कोड अगर किसी दूसरे डेवलपर को दोगे तो वो डेवलपर आपके कोड को आसानी से समझ सकता है कि हियर यू आर गोइंग टू अप्लाई स्टाइल फॉर ऑल पैराग्राफ, जिसमें कलर रहेगा रेड और टेक्स्ट अलाइनमेंट रहेगी सेंटर। सो कमेंट्स कैन बी एडेड इन द सेम वे इन द एक्सटर्नल स्टाइल शीट। प्रैक्टिकल डेमो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कमेंट्स कैसे यूज करेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट में। नाउ फ्रॉम हियर आवर प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट्स। There are three ways to include styles to your HTML elements and they are inline CSS, जिसे हम inline styles भी बोलते हैं, internal CSS और embedded CSS, external CSS और external style sheet. So guys, these are the three ways using which you can include style to your HTML elements. Okay, if you want to make your web pages attractive and presentable, you can use the CSS in these three ways. और एक एक करके हम सभी जितने भी टाइप्स हैं उनको प्रैक्टिकली समझेंगे। So first of all, we are going to start our journey with inline CSS. Inline CSS को inline styles भी बोला जाता है। The inline styling is done with the help of the style attribute. Suppose करो कि आप एक पैराग्राफ टैग का यूज कर रहे हो और उस पैराग्राफ टैग का आपको कलर चेंज करना है। सो हियर यू कैन सी दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस स्टाइल एट्रीब्यूट। ओके, तो जब आप किसी भी टैग के अंदर CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन करते हो, दैट मींस यू आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनलाइन स्टाइलिंग। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो द स्टाइल एट्रीब्यूट कैन बी एडेड to the HTML element to which the style has to be applied. And styles can be specified as the value of the style attribute. Example, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज करना पड़ेगा, स्टाइल एट्रीब्यूट का, और इस स्टाइल एट्रीब्यूट में आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी CSS की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। Now let me show you the practical example of using inline CSS. So guys, for practical part here I have created one CSS file. Okay, यहाँ पर मैंने HTML की फाइल बनाई है। एक्सटेंशन अभी आपके फाइल की यही रहेगी css1.html. Okay, so now guys, in this body tag, first of all I am going to use an h2 tag. अब यहाँ पर हम heading दे देते हैं कि that we are going to learn about inline CSS. Okay, so first let's talk about inline CSS. Here I am going to use one paragraph और यहाँ पर मैंने एक random text लिखा है, this is my paragraph. Okay, now I want to apply styles to it. So inline CSS में आप लोग क्या करोगे कि अपने टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करोगे और इन डबल कोट्स यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई CSS प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट कर दी कि कलर विल बी लेट्स से ब्लू। ओके, सो दिस इज गोइंग टू माय कलर। अब यहाँ पर मेरे को एक और CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन करनी है। सो आई एम गोइंग टू सेपरेट देम यूजिंग सेमीकोलन। ओके, और यहाँ पर एक और CSS की प्रॉपर्टी मैंने दे दी, लेट्स से फॉन्ट साइज, एंड फॉन्ट साइज विल बी 50 पिक्सल। ओके, नाउ लेट मी सेव दिस एंड इफ आई शो यू द फाइनल आउटपुट, हियर योर पैराग्राफ टैग विल अपीयर इन अ ब्लू कलर और उसका जो फॉन्ट साइज होगा दैट विल बी 50 पिक्सल। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप किसी टैग में उसका स्टाइल डिफाइन करते हो, दैट मींस यू आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनलाइन स्टाइलिंग और यू आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनलाइन CSS। अब नॉर्मल पैराग्राफ आपको कैसे नजर आएगा, अगर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लूं और इसमें मैं लिख दूं दिस इज माय पैराग्राफ। Let me save this file and if I refresh it, you can see this is how your normal paragraph appears. So this is the power of CSS. यहाँ पर हमने कलर ऐड किया है और हमने अपने पैराग्राफ का फॉन्ट साइज किया है 50 पिक्सल। So this paragraph
is of CSS paragraph और ये paragraph रहेगा आपका normal paragraph. So guys, in inline CSS we define style using style attribute. Now you can pause this video here and you can execute the same piece of code, or you can create an HTML file and write this same piece of code and observe the difference. This is how your paragraph will look with the help of CSS, and this is how your normal paragraph will look. कोड लिखते वक्त गाइस सिंटेक्स का थोड़ा सा ध्यान देना. CSS की प्रॉपर्टी सबसे पहले आएगी और उसकी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सिंगल कॉलन का. अगर आपको एक से ज्यादा CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यूज यूज करनी है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सेमी कॉलन का. Now after inline CSS we have internal CSS. In order to reuse the same style within the same page or to apply same styles for multiple elements, styles can be given inside the style tag inside the head part of the document. So guys, ये जो image आपको नजर आ रही है, this image is an example of internal CSS. अब आप बहुत ध्यान से समझना कि inline CSS में और internal CSS में exactly difference क्या है, और यही डिफरेंस आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि कब आप लोगों को इनलाइन CSS यूज करनी है और कब आप लोगों को इंटरनल CSS यूज करनी है. सो गाइस, इसी HTML फाइल का हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो कि इस वेब पेज में वी हैव मल्टीपल पैराग्राफ टैग. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस और मैं इसको मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर देता हूँ. ओके, सपोज यू आर डिजाइनिंग अ वेब पेज और उस वेब पेज में आप बहुत सारे पैराग्राफ टैग का यूज कर रहे हो. अब सभी पैराग्राफ टैग में हमको यही CSS का स्टाइल और यही CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू स्पेसिफाई करनी है. दैट मींस आई वांट कलर एज ब्लू एंड फॉन्ट साइज एज 50 पिक्सल फॉर ऑल माय पैराग्राफ. अब अगर आप लोग यूज करोगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनलाइन CSS, तो इनलाइन CSS के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है ये आपको हर जगह कॉपी करना पड़ेगा. ये यहाँ पर भी कॉपी करना पड़ेगा, ये आप लोगों को इधर भी कॉपी करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी. ऑब्जेक्टिव क्या है? सो ऑब्जेक्टिव हमारा सिंपल है कि जितने भी पैराग्राफ टैग हैं उनको हमें कलर देना है ब्लू और फॉन्ट साइज देना है 50 पिक्सल. If you are going to use the concept of inline CSS, you can see that the same piece of code you need to repeat for multiple times. Now here comes internal CSS into the picture. With internal CSS you can save your lot of time and you can reuse the same piece of code again and again. How? I'll show it to you. So यहाँ पर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ and the name of that file will be css2.html. Okay, let me import HTML code. Title मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, let's say CSS, and in H2 tag I'm going to specify internal CSS. Okay, here we are going to use the concept of internal CSS. अब यहाँ पर इस HTML पेज में we are going to use multiple paragraph tags. तो यहाँ पर हमको लेट से बहुत सारे पैराग्राफ टैग्स यूज करने हैं. हियर आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ सम फ्यू पैराग्राफ टैग. सो दिस इज द रैंडम टेक्स्ट आई एम गोइंग टू राइट. दिस इज माय पैराग्राफ. अब सपोज करो कि इस वेब पेज में वी हैव मल्टीपल पैराग्राफ टैग्स और सभी पैराग्राफ टैग को हमको एक कॉमन स्टाइल देना है कि इनका कलर हमको रखना है ब्लू और फॉन्ट साइज हमको रखना है 50 पिक्सल. अगर हम लोग यूज करें इनलाइन CSS का तो आपको ड्रॉबैक पता है कि ये जो पीस ऑफ कोड है ये हमको बार बार लिखना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इनलाइन CSS. आई वुड लाइक टू शो यू द पावर ऑफ इंटरनल CSS. अब इंटरनल CSS के लिए सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा स्टाइल टैग का. ओके, और ये स्टाइल टैग आप कहां पर डिफाइन करोगे? ये स्टाइल टैग यू आर गोइंग टू डिफाइन इन योर हेड सेक्शन. अब इस स्टाइल टैग में यू नीड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर टैग, ओके, और द नेम ऑफ द HTML एलिमेंट. तो हमारे HTML एलिमेंट का नेम क्या है? पैराग्राफ. सो हियर आई एम गोइंग टू यूज P. इसके बाद यू आर गोइंग टू यूज कर्ली ब्रेसेस.
ओके और यहाँ पर अब आप अपने पैराग्राफ टैग के लिए या पैराग्राफ एलिमेंट के लिए सीएसएस प्रॉपर्टी और वैल्यू लिख सकते हो। सो लेट्स से कलर मैंने यहाँ पर दे दिया ब्लू, ओके और फॉन्ट साइज लेट्स से हमने यहाँ पर दे दिया 50 पिक्सल। अब इस अप्रोच का बेनिफिट क्या है? इस अप्रोच का बेनिफिट ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है, दैट डिफॉल्ट ब्राउजर will going to keep the color as blue, font size as 50 pixel for all the paragraph tag. इनलाइन सीएसएस में हमको क्या करना पड़ रहा था? बार यही कोड हमको लिखना पड़ रहा था। But if you're going to use the concept of internal CSS, it will help you and it will provide you code reusability. And what is the meaning of this syntax? This syntax says now every paragraph tag in your web page will going to have the color as blue and font size as 50 pixel. Let me show you. इस पेज को मैंने सेव किया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने किसी भी तरीके का CSS प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन नहीं करी है। हमने CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू कहाँ डिफाइन करी है? स्टाइल टैग में। और ये स्टाइल टैग आपको कहाँ डिफाइन करना पड़ेगा? हेड सेक्शन में। लेट मी शो यू द आउटपुट ऑफ इट। Okay, so here I am going to execute in my default browser and see. For every paragraph tag, you will be going to have the color as blue और यहाँ पर font size क्या हो जाएगा? 50 pixel. So guys, I hope that the difference has been clear between the inline CSS and internal CSS. In inline CSS, you need to repeat the same piece of code over and over again. सपोज करो कि आप एक वेब पेज बना रहे हो और उस वेब पेज में आप मल्टीपल पैराग्राफ टैग्स का यूज कर रहे हैं। अगर आप इनलाइन सीएसएस यूज करेंगे तो आपको यही सेम पीस ऑफ कोड बार लिखना पड़ेगा। और अगर आप यूज करोगे इंटरनल सीएसएस का कॉन्सेप्ट तो ये चीज बस आपको एक बार मेंशन करनी है स्टाइल टैग में। एंड व्हाट दिस सिंटैक्स इज दैट हियर you are going to apply this CSS property and value to all the paragraph tag. तो ये होता है आपका सिलेक्टर। सिलेक्टर मींस हियर यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई योर HTML एलिमेंट। अब सपोज करो कि यहाँ पर हमको इस H2 टैग को भी कोई CSS की स्टाइल और प्रॉपर्टी देनी है। सो हियर व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट H2। तो ये हो गया हमारा सिलेक्टर और यहाँ पर आप देख सकते हो कलर एज रेड। अब जैसे आप इसको सेव करेंगे अब क्या होगा कि जो हमारा H2 टैग है इट्स कलर विल बी चेंज्ड इनटू रेड। Okay, so guys, this is the example of your internal CSS. अब एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। इनलाइन CSS में हम CSS कमेंट्स का यूज नहीं कर सकते, ओके, बट इंटरनल CSS में और एक्सटर्नल CSS में आप CSS के कमेंट्स का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर कमेंट्स लिखने के लिए यू आर गोइंग टू यूज फॉरवर्ड / एंड एस्ट्रिक साइन, देन एस्ट्रिक साइन एंड फॉरवर्ड स्लैश, और इसके बीच में यू कैन राइट योर CSS कमेंट। ओके, अब सपोज करो कि ये कमेंट्स मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ और मैं थोड़ा सा मीनिंगफुल डेफिनेशन यहाँ पर दे देता हूँ कि हियर वी आर using CSS for all paragraph tag. ओके, तो ये कमेंट हो गया कि here we are using CSS for all paragraph tag। ठीक है, और भी मीनिंगफुल देने के लिए अब आप यहाँ पर एक और बार CSS का कमेंट का यूज कर सकते हो। Here we are setting color as ब्लू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कमेंट्स लिखते क्यों हैं? ताकि अगर ये कोड आप किसी दूसरे डेवलपर को दो तो वो आसानी से समझ पाए। ओके, तो यहाँ पर अब सपोज करो कि ये कोड अगर आप किसी डेवलपर को दोगे तो वो समझ जाएगा कि here we are using CSS for all paragraph tag and here we are setting color as blue, here we are setting font size as 50 pixel। तो ये जो मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन है ये आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हो CSS कमेंट्स में। और ऑलवेज रिमेंबर दैट CSS कमेंट्स विल नॉट बी डिस्प्लेड इन योर फाइनल आउटपुट। ओके, इस पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूं बट आपको कहीं पर भी CSS से कमेंट्स नजर नहीं आएंगे। सो वी आर डन विद 2 कैटेगरीज ऑफ CSS। दिस इज the way using which you can apply inline CSS and this is the way using which you can apply internal CSS. Now we are going to discuss about the third one and that concept is known as external CSS। और ज्यादातर गाइस जब भी आप एक फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे आप लोग सबसे ज्यादा एक्सटर्नल CSS का यूज करोगे।
सो एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर प्रैक्टिकल डेमो के थ्रू मैं आपको बताता हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल सीएसएस. So guys, the external CSS or the external style sheet is generally used when the same style has to be applied in multiple pages. The syntax will be similar to the internal CSS, but the styles will be included from the external style sheet, which will be connected to the HTML file by linking the external style sheet. Now this second point, I am going to prove it to you with the help of a practical example. The external style sheet can be linked with the help of link tag. The external style sheet included should have the extension as .css. And this is going to be an example of your external CSS. External CSS में आपको क्या करना होगा, आप एक और फाइल बनाओगे, उस फाइल की एक्सटेंशन रहेगी .css और उसको आप अपने HTML पेज में लिंक करोगे using this link tag. So here you are going to use some attribute href, rel and the type. अब ये सारे attributes क्या होते हैं? Type means it will specify the style language. आप अगर CSS की कोई फाइल बना रहे हो so type will be CSS. href means it will specify the URL or path link to the external style sheet. And rel means it specifies the relationship between the current document and the linked document, and it's an optional attribute. However, I recommend you to use this relationship attribute. Okay, so these are the three attributes which you will be using if you are going to use the concept of external CSS. अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम एक्सटर्नल CSS का क्यों यूज करें, इसका क्या एग्जैक्टली में बेनिफिट है. सो लेट मी प्रूव this point with the help of a practical example. So guys, सबसे पहली बात हम ये डिस्कस करते हैं कि डेवलपर्स या वेब डेवलपर्स एक्सटर्नल CSS का यूज क्यों करते हैं. The logic is quite simple. The reason behind using external CSS is so that you can separate HTML code and you can separate CSS code. अब इस सेपरेशन का क्या मतलब होता है मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. डेवलपर्स या वेब डेवलपर एक्सटर्नल CSS को इसलिए यूज करते हैं, सपोज कि ये आपका वेब पेज है और इस वेब पेज में आपको HTML भी यूज करना है और CSS भी यूज करना है. एक्सटर्नल CSS का क्या बेनिफिट होता है कि आप HTML की फाइल में सिर्फ HTML का कोड लिखोगे और .css फाइल में आप CSS का कोड लिखोगे और बाद में हम इनको क्या करवा देंगे, बाद में हम इन दोनों को आपस में करवा देंगे लिंक. इसका बेनिफिट बहुत ही सिंपल है कि CSS की फाइल में आपका सिर्फ CSS से रिलेटेड कोड रहेगा, HTML की फाइल में आपका HTML से रिलेटेड कोड रहेगा. इट प्रोवाइड्स यू कोड रीडेबिलिटी. सपोज करो कि आपको CSS में एडिटिंग करनी है, जब भी आप एक वेब पेज बनाओगे तो आराम से आप उसमें 1000 से 2000 लाइन ऑफ कोड का लिखोगे ही लिखोगे. अब अगर आप 1000 और उस 2000 लाइन ऑफ कोड में HTML का कोड भी एक साथ लिख दो, CSS का कोड भी आप एक साथ लिख दो, तो चीजों को मैनेज करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. अब अगर आप एक्सटर्नल CSS का कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो आपको पता है कि CSS का कोड आपका CSS की फाइल में है, HTML का कोड आपका HTML की फाइल में है. And guys, most of the time we are definitely going to use the concept of external CSS. बेनिफिट क्वाइट सिंपल है कि CSS की फाइल में हम CSS का कोड लिखेंगे और HTML की फाइल में हम HTML का कोड लिखेंगे. इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट. इंटरनल स्टाइल शीट में आपने देखा कि हमने हेड सेक्शन के अंदर एक स्टाइल टैग का यूज किया और उसके अंदर हमने अपनी CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू को डिफाइन कर दिया. बट एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा .css, एक्सटेंशन उसकी रहेगी .css और .html फाइल में हम HTML का कोड लिखेंगे और .css फाइल में हम लोग CSS का कोड लिखेंगे. लेट मी शो यू अ क्विक एग्जांपल ऑफ इट. तो यहाँ पर एक मैंने HTML की फाइल बनाई है. Here I am going to use an h2 tag. Let's say मैंने यहाँ पर लिख दिया heading और let's give it a name as external CSS और external style sheet. यहाँ पर एक मैंने पैराग्राफ बनाया और यहाँ पर लिख दिया this is my paragraph. अब यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल CSS. तो अब मैं जो CSS का कोड है मैं इस HTML की फाइल में नहीं लिखूंगा. If you are using external CSS, here you are going to create a new file
Okay, let's say my style, and the extension of this file will be .css. Okay, so this is how you are going to create a CSS file. Always remember, यहाँ पर आपको extension क्या देनी पड़ेगी, .css. आप यहाँ पर HTML मत लिख देना, क्योंकि अब हम बना रहे हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट, तो इसकी एक्सटेंशन रहेगी CSS. अब इस CSS की फाइल में वी आर गोइंग टू राइट ओनली CSS कोड. तो यहाँ पर मैंने H2 टैग के लिए एक स्टाइल लिख दिया कि इसका कलर हम लोग सेट कर देते हैं एज डार्क ब्लू, और हमारे CSS3.html के पेज में एक पैराग्राफ टैग भी है, इसको मैंने कलर यहाँ पर दे दिया, लेट्स से डार्क गोल्डन रोड. ओके, और यहाँ पर इसका मैंने फॉन्ट साइज दे दिया, लेट्स से around 50 pixels. So this is the benefit of using external CSS. चीजें अब आपके लिए बहुत आसानी से मैनेज हो जाएंगी, क्योंकि अब आपको पता है CSS का कोड हमने CSS की फाइल में लिखा है, HTML का कोड हमने HTML की फाइल में लिखा है. अब मेन पॉइंट आता है कि हाउ यू आर गोइंग टू लिंक दीज टू फाइल्स टुगेदर. सो गाइस, हियर कम्स स्टाइल टैग इनटू द पिक्चर. तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखोगे स्टाइल टैग का, और मैं भी आपको एक और बताता हूँ कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस स्टाइल टैग, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज लिंक टैग. Okay, what we can do, we can use link tag. अब हम यहाँ पर इस link tag को क्यों यूज कर रहे हैं, because here I want to link this mystyle.css with this css3.html. अब यहाँ पर कुछ attributes आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, type, relationship and the href. So let's say मैंने बता दिया कि relationship will be style sheet, that here we are going to use style sheet. Okay, किससे रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली हमने एक स्टाइल शीट की फाइल बनाई, तो रिलेशनशिप विल बी स्टाइल शीट. href प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कि आपकी CSS है कहाँ पे और उस CSS का नाम क्या है. तो हाइपर रेफरेंस में वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई दैट दिस इज द नेम ऑफ आवर फाइल mystyle.css, और इसका टाइप क्या रहेगा. ओके, इसका टाइप अब आप सेट कर सकते हो CSS. Okay, so these are the three attributes which you are going to use: rel, href and the type. Okay, इस type में आप लिख सकते हो text/css. Okay, this is how you are going to link your external style sheet with your HTML file. So guys, अब इस पेज को मैं करता हूँ save. Okay, so I'm going to save this, and if I show you the final output, this is how it will look. तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि H2 का कलर हो गया है डार्क ब्लू, पैराग्राफ को हमने प्रोवाइड करा था गोल्डन रेड, और उसका फॉन्ट साइज हमने दिया था 50 पिक्सल. अब बेस्ट पार्ट क्या है कि हमने HTML के कोड में सिर्फ HTML लिखा है, और CSS के कोड में हमने, और या CSS की फाइल में हमने CSS का कोड लिखा है. So if you are going to use this kind of a concept, that means you are going to use the concept of external style sheet. And guys, most of the time we will be using the concept of external style sheet in our final project. We will be using the concept of external style sheet. Okay, so here it completes our demo of introduction to CSS.